इमाम सिलसिला ज़ीमिया हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के महबूब शागिर्द मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर सरबराह सिलसिला ज़ीमिया डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब ने आप सबको मरकज़ी मराक़बार में मदऊ किया। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया और आपको सिलसिला ज़ीमिया मरकज़ी मराक़बार की जानिब से आप सबको खुशामदीद। सरमद गम इश्क बुलहवस राना दहीन। सरमद, ये जो इश्क का गम है ये अवल हवस लोगों को नहीं मिलता। सरमद गम इश्क बुलहवस राना दहीन, सोज़े दिले परवाना मगस राना दहीन। कि परवाने के दिल में जो सोज है शम्मा पे निसार होने का, उसके अंदर जो जज्बा है शम्मा पे कुर्बान होने का, वो मक्खियों के नसीब में नहीं होता। सोज़े दिले परवाना मगस राना दहीन, उम्र बायर के यार आए बकनार। और ये कि महबूब से वसल हो जाए, महबूब से कुर्बत हासिल हो जाए, इसके लिए उम्रें चाहिए। उम्र बायर के यार आए बकनार, ई दौलत सरमद हम कसराना दहीन। सरमद ये ऐसी बड़ी नेमत है जो हर अरे आदमी को नहीं मिलती, ये उन्हीं को मिलती है जो इसार करते हैं। तो वो जो सोज़े दिल परवाना है वो आपको आज की इस तकरीब में नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर मुर्शिद करीम ने मार्फत की शमा जो एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील होती रहती है, और जो तोहफा हमारे हम सबको दे कर गए हैं सरवराह तज़ीमिया डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी की सूरत में, तो इनके दिल का जो सोज है वो आपको आज की इस तकरीब में और इस सारी रोनवाई प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं, उसके बाद नाते रसूल मक़बूल, और फिर मैं खालिद साहब को गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम की प्रोसीडिंग आगे बढ़े। की रात है।
کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری سائے دعا کی رات ہے، نور پھیلا ہوا جس کی رات ہے۔ میں پہلے جب آیا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پروگرام ہوگا، کیسے ہوگا، مگر یہ ایک یونیک پروگرام تھا، اور یونیک پروگرام ایسے پروگرام کہ جس کی ہمیں توقع نہیں تھی، ایکسٹرا آرڈنری آج پروگرام لگا۔ اور میں نے ابھی یہی باتیں ان لوگوں سے کر رہا تھا کہ یہ پروگرام تو پورے ورلڈ میں ایسے کوئی پروگرام یونیک ایسی زیارت نہیں ہوگی، اور یہ سارا چیز انسپائریشن سے ہوا ہے۔ پہلے بھائی جان کو انسپائریشن ہوئی ہے، پھر وہ پھرتے پھرتے ایسے شخص کو ڈھونڈ لیا کہ وہ خالد میمن سے میں نے کہا کہ آج آپ کو نظر نہ لگ جائے، اتنی بہترین آپ نے یونیک باتیں کی، تو یہ ساری انسپائریشن ہو رہی تھی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک جیسے یونیک پروگرام تھا، ایسے یونیک طریقے سے یہ بن بھی جائے گا، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی وہ فضل اس کے اوپر شامل حال ہے۔ تو میں تو بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں اس پروگرام کو دیکھ کر، حالانکہ میری اب 80 سال عمر ہے، اتنا زیادہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، مگر ادھر میں چست بالکل اس طرح ہوں۔ وجہ یہ کہ اتنا خوشی ہوئی ہے مجھے اس پروگرام کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ جی، یہ جو پریزنٹیشن تھی بڑی اچھی تھی، بہت ہی اچھا پروگرام تھا، بڑا امپریسو، اور بڑی محنت کی گئی ہے اس ڈیزائن کو بنانے میں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو آرکیٹیکٹ بھائی تھے بڑے، انہوں نے اچھا کام کیا، اور بھائی جان کا تو خیر مرکزی کردار تھا، تو بھائی جان وقار یوسف صاحب نے بڑا اس میں رول ادا کیا، تو بتایا گیا تھا کہ 8 مہینے لگے ہیں اس پہ، اور بہت ہی خوبصورت، بڑا امپریسو، بڑا ماشاءاللہ، بڑا ہمارے بھی ذہن کھلے، دیکھا بڑا دل خوش ہوا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، بابا جی کے شایان شان وہ ڈیزائن بن رہا ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ بن جائے گا، بابا جی کا مزار مبارک، تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ دنیا دیکھنی آئے گی اس کو جی۔ ہوٹل میں مرشد کریم کے مزار شریف اور اس کے ساتھ تصوف کے فروغ کے لیے درگاہ شریف کی کنسٹرکشن کی جو پریزنٹیشن تھی نا، وہ بہت ہی قابل تحسین ہے، جو کہ حال، ماضی اور مستقبل کا حسین امتزاج ہے۔ بہت ہی اعلیٰ تفکر اور تدبر کا حسین شاہکار محسوس ہوا، جو کہ بھائی جان نے اپنے والد اور مرشد کریم کے لیے بہت ایک اچھی کوشش، اچھی کاوش اور جد و جہد ہے۔ جی ماشاءاللہ بھائی جان کی بہت زیادہ محنت ہیں، جس طرح سے شروع میں خالد بھائی نے کہا تھا کہ سرمد گمیش قبول وسرانہ دن، بھائی جان اس کی تفسیر ہیں، اور بھائی جان جیسے حضور ایک دفعہ مرشد نے فرمایا تھا کہ اللہ کرے میرا جنون آپ کا جنون بن جائے، تو بھائی جان کے اندر وہ جنون نظر آ رہا ہے، اور آج کا جو یہ پروگرام تھا اس کا حضور مرشد کریم کی درگاہ کا، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جدید اور قدیم طرز کے دونوں طرز پہ ہے، اور بہت عظیم الشان درگاہ بنے گی۔ بہت اچھا پروگرام تھا آج کا، ہماری سب کی دعائیں بھائی جان کے ساتھ ہیں، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کے مرکز کے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی یہ تکمیل ہو جائے۔ جو وے آف پریزنٹیشن تھا آرکیٹیکٹ صاحب روف صاحب کھتری صاحب کا، اور اس سے پہلے جو خالد صاحب نے رنگ بھرا حضور مرشد کریم کی آخری آرام گاہ،
जिसको भाईजान ने दरगाह का नाम दिया है मज़ार शरीफ के हवाले से, मरकज़ मज़हर के हवाले से। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जैसे भाईजान ने इसके ऊपर मेहनत की है, जैसे आर्किटेक्ट साहब ने उसको ब्रीफ किया है, एक तो सबके जहन के दरीचे खुल गया कि जैसे भाईजान का एक विजन था कि जैसे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि एक तो मेरा गुंबद नहीं बनाना, और वाकई एक यूनिक चीज़ है। और इसमें तीनों हिस्ट्री ऑफ जो इस्लाम है, माजी में जो हमारा डिवाइंग सिस्टम था, जो औलिया इकराम की खिदमत थी, जो हमारा कल्चर था, एक वो भी इसमें माजी के हवाले से इसमें रंग नज़र आ रहे हैं। हाल उसको कैसे चलाना है, उसमें एक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, तालीम का कंसेप्ट है, रूहानियत का कंसेप्ट है, मुर्शिद करीम की तर्ज फ़िक्र का उसमें कंसेप्ट है। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अजीज़ हमारे मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो विजन था इसमें पूरा नज़र आ रहा है। और जैसे भाईजान ने इसके ऊपर मेहनत की कि मुस्तक़बिल के लिए कि दरसगाह बने, एक अजीम यूनिवर्सिटी बने, एक कंसेप्ट बने। आज जो प्रोग्राम हमने देखा, अपनी ज़िंदगी में तकरीबन मेरी एज इस वक्त 74 ईयर्स है, मैंने ऐसा प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं देखा। ये मेरी ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा था जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है। ये हमारा फ्यूचर है हमारे सिलसिले का। मैं मुसलसल ये प्रोग्राम देख रहा था और ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ताला हमें इस जो हमें दिखाया गया है इसको मुकम्मल कंप्लीट करने की तौफीक अता फरमाए। खत्री साहब ने जो काम किया है वो सारा का सारा ऐसा काम है कि वो अब्बा के शायान शान है, और अब्बा जिस लेवल पे रूहानियत के इस पे हैं, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कुछ देखा है, अगर हम इसको ताबीर पहना सके, इसको अमली जामा पहना सके, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत बड़ा काम ले लेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है कि आज हम सब एक ऐसे तारीखी और बाबरकत लम्हे में जमा हैं जहां दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी मरकज़ सिलसिले अज़ीमिया की डिज़ाइन की तकरीब रोनुमाई मुनक़िद हो रही है। फ्लेक्स के एक दरगाह के मंसूबे का तारुफ नहीं, बल्कि ऐसे ख्वाब की तकमील का नुक्ते आगाज है जो रूहानी और साइंसी उलूम, मुराकबा और मुकाशफा और रुश्द हिदायत को मौजूदा और आने वाली नस्लों तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। इस लम्हे तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 माह पर मुहित एक तवील और मेहनत तलब सफर है। भाईजान ने जो मुझे अपना विजन बयान किया, फन तामीर का एक ऐसा शाहकार जो हाल में रहते हुए माजी में ले जाए और मुस्तकबिल से हम आहंग हो। जो मेरे वालिद साहब की लेगेसी को कैरी करता हूं और सिलसिले के अगराज़ और मकासद से अलाइन हो। इसके हर मरहले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखा जाए। यहां पर बात हो रही है 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, 4 मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट की। फन तामीर का ऐसा शाहकार जो हाल में रहते हुए माजी में ले जाए और मुस्तकबिल से हम आहंग हो। एक कंस्ट्रक्शन, एक आइडियाज, एक आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट की भी डेप्थ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये हो गई एक कंस्ट्रक्शन का गोल। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन जो मेरे वालिद साहब की लेगेसी को कैरी करते हो। दूसरा, जो सिलसिले के अगराज़ व मकासद से अलाइन हो।
विजन है छोटी तौर पे, एक 2 4 10 20 50 साल पे मूलिक नहीं है, बल्कि सदियों पे मूलिक है। जनाब फहीम साहब जो हैं वो, इनकी एक कंपनी है मिस्टर प्रोपोर्शंस, वो उसके बानी और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान के फेलो हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर 33 साल शानदार पेशा वराना तजर्बा रखते हैं। इनका कैरियर जिद्दत, तालीम और क़यादत के इम्तिजाज की एक रोशन मिसाल है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर जैसे मोतबर इदारे से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद जनाब खदरी ने अपने फन को इस आला मयार तक पहुंचाया जहां रिवायत और जदीदियत एक दूसरे में हम आहंग नजर आती है। वो पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन के नेशन वाइड डिजाइन मुकाबले में अवार्ड याफ्ता आर्किटेक्ट रह चुके हैं। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरा सलाम। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन वक़ार यूसुफ अज़ीमी भाईजान साहब और खालिद नेमत साहब, जिन्होंने मुझे इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपको आपके विजन में आगे बढ़ने में किसी हद तक मदद दी। बहुत खुशगवार एक मौका हुआ कि वक़ार साहब के जो विजन है उसको इन्हीं अलाइनमेंट के साथ उसको आर्किटेक्चरली प्रोफेशनली आगे बढ़ा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सोचा गया था वो बिल्कुल अलाइन था वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब की विजन के तहत। उसके पीछे काफ़ी हमारी डिस्कशन रही हैं, काफ़ी एक जर्नी रही है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस विजन को इस प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ाए कि आर्ट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होता है। आप चाहे जितनी भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, अब फाइनली एक ही स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि वो आर्ट जिसका कोई फंक्शन हो, जिसकी कोई यूटिलिटी हो, उस आर्ट को डिजाइन कहा जाएगा। इट मीन्स कि डिजाइन के अंदर जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो फंक्शन होता है, वो एक मकसद होता है, वो किसी एक शख्स के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस है आर्ट में और डिजाइन में। आर्किटेक्ट का रोल जो होता है वो प्लानिंग के अंदर एक शायर की तरह होता है कि वो एक ख्याल को कूजे में बंद करना पसंद जानता है अगर वो जेन्युइन आर्किटेक्ट है, और उस ख्याल को वजूद बख्शता है। हमारे नजदीक आर्किटेक्चर एक ऐसा फन है कि जिसमें उस आर्टिस्ट को, उस आर्किटेक्ट को वो आंख से देखता है। शुरू में वो गैर में देखता है, गैर से डिजाइन आते हैं और वजूद बख्शता है। इस सफर में अगर वो जेन्युइन हो, अगर वो बिल्कुल ईमानदार हो, तो उसको कई ऐसे मुशाहिदात होते हैं जो बयान बनाएंगे और उसको फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाता हूँ जो मैं इस सिलसिले के अवराज और मकादिस पढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि हम कुछ जो समझा है उस पर हम कुछ कर सकें, और इससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि माइंड फ्रीक्वेंसीज मिल गई। वो सोच जो वक़ार साहब की है वो इजीली बड़े अच्छे तरीके से हम एक ही अलाइनमेंट में डिस्कशन और हमारे लिए भी बड़ा लर्निंग प्रोसेस था कि माशाल्लाह आप जैसे स्टेशन के लोगों के साथ जब इस तरह 1-to-1 बात हो
تو بہت کچھ سیکھا بھی, بہت کچھ لرن بھی کیا, اور ان کی عزت افزائی کی, اس سے اعتماد بڑھا اور اس سے جذبہ بھی بڑھا کچھ کرنے کا, اور خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم یہ کرتے چلے گئے. میرے سمیت میری جو ٹیم ہے, جیسے حمزہ قطری ہیں, یہ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ہیں اس پروجیکٹ کے, اور سفیان ہیں, اور پوری ٹیم ہے, سعد ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے پروسیس میں اس تمام خیال کو وجود بخشنے میں ایک رول ادا کیا. ہم سب کو اعتماد کے ساتھ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو وہ رزلٹ دکھا سکیں. اس اسپیس میں اب ہم کیا آئیڈیالوجی یا کیا ایسی کانسیپٹ کریٹ کریں جس سے یہ سلسلہ ماضی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے اور حال کو بھی شو کرے اور مستقبل کے ساتھ ہم آن دو. میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم مسلمانوں کا ماضی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. فنون کا ایک پلیٹ فارم مہیا ہوتا تھا, اور یہ گولڈن پیریڈ ہمارا جو ہے وہ 8 سینچری سے لے کے 14 سینچری تک یہ رہا. تو وہ ہماری عروج تھا, وہ ہمارا گولڈن پیریڈ تھا جس میں ہم نے ہر فیلڈ میں جو ہے وہ عروج پہ جا کے کام کیا. اب جو گولڈن پیریڈ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہی نظام کا ایک بڑا رول تھا, اب وہ شاید اپنے اس لیول پہ نہیں پرفارم کر پا رہا. میسج وہی ہے, اور اگر میں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے سوچوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں سوچوں کہ وہ کون سا خانقاہی سلسلہ ہے جو اگر اس اسٹاپ کو جو اس وقت وہاں رک گیا تھا اس کا بیسٹ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے. تو میری ایک نظر میں سلسلہ عظیمیہ بالکل اسی انداز سے یہاں وہ ذہن, وہ رہنما اور وہ ویژن موجود ہے کہ جس سے ہم اپنی دوبارہ نشاط ثانیہ, اپنی رینیسانس کی امید کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کی تمام فکری, شعوری اور ذکر, عبادت, پروگرامز, محفلیں, سب کچھ اس لیول کی ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیا جائے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو آپ سمجھیں تو آپ کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا. آج کا انسان وہ سب چیزیں دیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے. تو اس پروجیکٹ کی ڈیزائن کے لیے جب خیال بننی شروع ہوئی تو کچھ ایسا سوچنا شروع کیا, ایسا خیال دل میں آنا شروع ہو گیا کہ سلسلہ عظیمیہ کے اس مرکز کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سمپل اس میں ایک مقبرہ ڈیزائن کر دیا جائے. اٹ شوڈ بی ورک لائک اے یونیورسٹی, ایک ایسی جامعہ, ایک ایسی درسگاہ جہاں سے اعلیٰ ذہن سازی ہو, وہ آگے بڑھ کر کے اس سلسلے کے مقاصد کو اور مزید آگے لے جائیں. اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ عظیمیہ کوئی نیشنل یا ریجنل سلسلہ نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سلسلہ ہے, اور اس میں بہت اعلیٰ ذہن, پڑھے لکھے ذہن, پروگریسو ذہن یہ لوگ موجود ہیں. تو آج وہ موقع ملتا ہے کہ اگر ہم اس اسپیس کو جو اس وقت ہمارے پاس 0.6 اور 0.67 ایکڑ کی جو زمین ہے اس پر جو بھی اسپیسز ابھی پرفارم کر رہی ہیں, جو بلڈنگز, جو پروگرامز وہاں ترتیب دیے جاتے ہیں مرکزی مراقبہ حال میں, ان کو ایک ایسے ڈیزائن پروگرام کے تحت کنورج کیا جائے کہ وہ ایک عظیم درسگاہ بن سکے, اور اس کو ایک عظیم خانقاہ, درسگاہ, ایک یونیورسٹی جیسا درجہ, فیلنگ دی جائے, کریکٹر دیا جائے, کیونکہ وہ وہاں یہی رہا ہے سب کچھ. ماشاءاللہ لیکچرز ہوتے ہیں, مراقبے ہوتے ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, لوگ رہتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں,
और बिल्कुल डिफरेंट जहन देता है, और इनको देख करके हैरानी होती है कि कोई खानकाही सिलसिला इस तरह भी चल सकता है। तो मेरे जहन में और हमारी कलेक्टिव सारी सबकी कोशिश और यही था, भाईजान साहब का भी विजन, कि इसको इस तरह लिया जाए कि ये माजी से कनेक्ट हो और फ्यूचर के फ्यूचरिस्टिक हो। तो माजी वो है जिसको मैंने अभी डिस्कस किया कि वो सिलसिला जो वहां से रुका था उसको दोबारा यहाँ से जोड़ा जाए। तो जो बात हम सेम कर रहे हैं, ख्याल की, रोशनी की, और आज हमारे ही आबा और अजदाद की इल्म को यूज करते हुए वही नुक्ता और वही बात करके अगर ये लोग नोबेल प्राइज ले सकते हैं 2025 का, तो होना ये चाहिए कि ये दर्जगाह ऐसी बने कि अगली दफा ये नोबेल प्राइज यहां से फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स की फील्ड में अभी 3 लोगों को जो एक नोबेल प्राइज दिया गया है। वगार साहब से भी बात हो रही थी कि वो सेम मैसेज है जो सिलसिला अजीमिया का है और जो हकीकत है और जो डिस्क्राइब किया गया है। तो मैसेज वही है, उन्होंने समझा, उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। हम जानते हैं, समझते हैं, हमें भी प्रूफ करना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब्बा जी का विजन और वकार साहब का विजन और आप तमाम लोगों की कोशिशें, मेहनतें और आपकी वाबस्तगी, आप लोगों का इल्म बिलाशुबह इस चीज का हमें एक होप और एक उम्मीद दिलाता है कि ये चीज हो सकती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी निशात सानिया फिर यहाँ से होगी, हमारा रहसान फिर यहाँ से होगा इंशाअल्लाह। एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट का एक्चुअली सही मानों में विजन यही होता है कि मैं उस यूजर की रूह को अफेक्ट कर जाऊं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि हमारे माजी जहां जिस रीजन में थे, जैसे बगदाद वाज द मेन हेडक्वार्टर फॉर हिकमत एंड इल्म, और फिर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से भी इस तरह की मूवमेंट्स नहीं है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या क्या बिल्डिंग एलिमेंट्स थे जिनको वहाँ एक दर्जा हासिल था। और अब हम जब माजी से कनेक्ट करने जाएंगे तो हम चाहते हैं कि हम उस पीरियड में, उस बगदाद में, उस अंदलस में, उस कार्डोबा में चले जाएं और उसके रिफ्लेक्शन ऐसे लाएं कि वो ये ना लगे कि हमने सिर्फ माजी को कॉपी कर दिया है, मनो अन सिर्फ जिसको आम ज़बान में कहते हैं छाप दिया, नहीं, उसको स्टाइलाइज्ड वे में आज की टेक्निक्स के मुताबिक, आज की जरूरत के मुताबिक इस तरह इम्बेड करना है कि once a person enters into that space, उसको फील हो कि मैं किसी दूसरे जगह आ गया। इंशाल्लाह 3-4 साल में, 5 साल में ये अपना वजूद बख्शेगा। हम दरख्वास्त करते हैं डॉक्टर वकार यूसुफ अजीमी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये जो हमने काबिश की है, जिसमें सारा जो क्रेडिट है वो करीम खत्री साहब का है। ये उनको तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उनके साथ ये बात हुई थी कि भाई कॉन्सेप्ट हम आपको दे सकते हैं, उसको मटेरियलाइज आपने करना। और बड़े दिल से उन्होंने ये काम किया है, बहुत दिल से, बहुत अब्बा जी के साथ, बहुत अकीदत से और सिलसिले ज़ीमिया के साथ बहुत गहरे एक कल्बी ताल्लुक़ के साथ और सिलसिले ज़ीमिया से हाल और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद रख के इन्होंने काम किया। कि आप ये जो आपने कहा कि भाई नशत सानिया जो होगी, रेनेसेंस जो होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें ये सादत अता फरमाए। अज़्म करना है, उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, इल्मी लिहाज से तैयारी करनी है, अखलाकी लिहाज से तैयारी करनी है
रूहानी लिहाज से तैयारी करनी है, और हमने साइंस और तसव्वुफ के दरमियान एक ब्रिज बनना है। ये जो चीज़ है, जैसे कि अक्सर हमने लिखा है कि अभी फ़हीम ने भी वही बात की कि जितनी भी मॉडर्न साइंसेज, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो भी तो आप अल्लाह तक पहुंच रहे हो, अगर आप फिजिक्स पढ़े तो भी आप अल्लाह तक पहुंच रहे हो। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉन साइंटिफिक उलूम आपको पढ़ने पड़ेंगे या ह्यूमैनिटीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप रूहानियत का सफर तय कर रहे हो जर्नी विद इन के जरिए तो भी आप अल्लाह तक पहुंच रहे हो। और लेकिन जर्नी विद इन अनफुस और आफाक, अगर अनफुस और आफाक में वो एक उन जर्नीज को अगर कंबाइन कर दिया जाए और दोनों अपने 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 नतीजे फिक्र और दोनों अपने अपने इल्मी हासिलात अगर एक दूसरे के साथ शेयर करें तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी भलाई का काम है, ये सारे इंसानों का भला होगा। और हम चाहते हैं कि साइंस की तरक्की से जो इंसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है उसका बिलाशुबा बहुत बड़ा फ़ायदा है, उसका कोई इनकार नहीं है। हम सब उससे इस्तेफादा करने वाले लोग हैं, तो हम कभी भी साइंस के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखते, हम बड़े पॉजिटिव थॉट रखते हैं। हम खुद उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी साइंस की वजह से कर रहा हूँ, जो मेरे आप तक आवाज़ जा रही है। हमने ये सारी प्रेजेंटेशन हुई, ये भी साइंस की ही वजह से सारी प्रेजेंटेशन हुई है। हमारी इसमें एक गुजारिश है जो हमारे सिलसिले के हम सब लोगों से करते रहते हैं, उसी को मैं याद दहानी आपको करा रहा हूँ कि हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि इंसानी अक्ल वही किताबें रहनी चाहिए। इंसानी अक्ल अगर खुद फैसले करेगी तो गलतियां करेगी, और अगर हम अल्लाह की निशानियों को खोज रहे हैं थ्रू साइंस, थ्रू आर्ट, थ्रू लिटरेचर, थ्रू रूहानियत, उसमें हम अल्लाह की मंशा को और अल्लाह की मशीयत को पेश नज़र रखें और अपनी सारी अचीवमेंट को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो ये अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट सारी इस दुनिया के लिए खैर बने। वरना अगर आप इसका एक्यूमुलेटिव रिजल्ट देखते हैं साइंस की तरक्की का, अगर आप उसका इंडिविजुअल रिजल्ट देखते हैं तो बहुत सहूलतें हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर आप इसका इज्तिमाई रिजल्ट देखते हैं तो खसारा है। आप देखें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज ड्यू टू साइंटिफिक सारी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं। इस वक्त एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हैं, इस वक्त जमीन को जो आपकी मादरे अर्ज को जो मसाइल दरपेश हैं वो क्या है, वो सब इंसानी कामों की वजह से है। और इंसानी कामों में उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक सारी डिस्कवरीज या अचीवमेंट्स का है। इंसान शुरू में ही ये अक्ल ले था कि ये साइंस की सारी बातें वही किताबें होती, कुरान किताबें होती, तो साइंस के बेनिफिट्स हमें मिलते और साइंस की वजह से जो जमीन को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और आज जो हमारी बका को चैलेंजेस दरपेश हैं वो ना हो। सिलसिले दुनिया का ये एक तरह से मिशन है कि हमारा ये मिशन है कि हम खुद भी इस बात को समझें कि हमने खुद भी साइंस पढ़नी है, अपने बच्चों को भी पढ़ानी है, साइंटिफिक अप्रोच अख्तियार करनी है, लेकिन कुरान के ताबे रहना है। जैसे आपने कहा ला गालिब इल्लल्लाह, ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को हुक्म नहीं, हुक्म अल्लाह का है। तो साइंस की डिस्कवरीज में भी अगर हम अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखेंगे तो इंसानों के लिए खैर का सबब बनेगा। और हम सिलसिले दुनिया चाहता है कि हम तसव्वुफ और साइंस के दरमियान गैप ना डालें, तसव्वुफ साइंस के दरमियान ब्रिज बनाएं। हमारी मौजूदा नस्ल, हमारी आने वाली नस्लें हर इल्म को अल्लाह से कुर्बत का जरिया बना लें। हमारे यहाँ होता ये कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके बारे में कहते हैं कि देहरिया होता है, जो ज्यादा पढ़ लिख गया है इसलिए ये एथिस्ट हो गया, ये देहरिया हो गया। तो हमारा कहना ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे को तो ज्यादा आरिफ बिल्ला होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा पढ़ा लिखा देहरिया हो रहा है और ज्यादा पढ़ा लिखा आरिफ बिल्ला नहीं हो रहा तो कसूर किसका है? क्या उस शख्स का जो एथिस्ट हो गया है उसका कसूर है या हमारा कसूर है? अगर ज्यादा पढ़ा लिखा सही समझ पे नहीं आ रहा, सही राह पर नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि उसका कसूर नहीं है या हमारा। सिलसिले दीन में इस सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए।
दुनिया भर में एथीज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा फसाद का उन्वान है, और इसके लिए खैर की कुव्वतों को काम करना चाहिए। और सिलसिले दीमिया के सब अकाबरीन को, सिलसिले दीमिया के सारे सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपना अल्लाह की मर्जी वाला किरदार किस तरह अदा करना है, जिससे अल्लाह खुश हो, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, और हमारा वो किरदार जो हमें हमारे मादी से जोड़ दे, हमें हमारे शानदार मादी से जोड़ दे। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, सिलसिले दीमिया में बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जहन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रोशन नजर लोग हैं। अगर हमने अपनी सब मिल के इस तरफ फोकस किया तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, और अल्लाह की तौफीक के साथ हम सब इंसानियत की एक बड़े पैमाने पर खिदमत करने के काबिल हो सकेंगे। ये माशाल्लाह आपने प्रोजेक्ट देखा, जिस पे फहीम साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने घंटों घंटों मेरी बातें सुनी इनके, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि जो मैं इनसे बात करता था वो इनका जो रिस्पॉन्स आता था तो मैं उससे मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ये समझ रहे हैं। इसमें अब्बा से गाहे बागा है बातें होती रहती थी, कभी कोई बात कभी कोई बात। तो एक दिन अब्बा ने मुझसे कहा कि देखो भाई जब मैं चला जाऊंगा ना तो मेरी कोई ऐसी जगह नहीं बना, सादा सादा कब्र की शादी सी बना। तो जैसे बाद में लाइटर मोड में बात करता है, हमने कहा अल्लाह सलामत रखे, कभी जहन में नहीं था कि अब्बा चले जाए, कभी आखिरी दिनों में भी जहन में नहीं था कि चले जाए। तो जैसे हमने तो लाइटर मोड में किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं बनाना, कच्ची सी कब्र हो बस, ज्यादा नहीं बनाना, लेकिन अगर बनाओ तो शायद उन्होंने अंदर मेरा दिल पढ़ लिया होगा कि कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अगर बनाओ तो ज्यादा बड़ा ना हो और उस पर गुंबद। तो मैंने कहा ठीक है सही है, फिर हम दूसरी बातें करने लगे। अभी जब हमने ये काम शुरू किया तो इनको एक चैलेंज ये भी था कि गुंबद के बगैर कैसे बने। दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये चाहता था कि एक तो ये किसी से इंस्पायर हो गए ना बना है। एक तो मुझे ये एहसास था और है कि हमारे पास जगह बहुत कम है, जैसे आपने बताया 0.67 एकड़, पौने एकड़ जगह है, पौने एकड़ से भी कम एकड़, जगह बहुत कम है। अब इतनी कम जगह में हम इसमें आर्किटेक्ट अपनी क्या फनकारी करें, बड़ी बड़ी जगह होती तो बड़ा प्रोजेक्ट बनता, तो छोटी जगह में बनाना ये एक और बड़ा चैलेंज है। तो एक मेरी ये ख्वाहिश थी और है कि बाकी जो दरगाह बने उसकी जो बिल्डिंग हो, सादा सी बिल्डिंग हो, लेकिन वो ऐसी आर्किटेक्ट साहब बना दें कि वो जो मकबरा या मज़ार या दरगाह लैंडमार्क बन जाए। कि भाई ये हमारा ये जो है ना दरगाह ख्वाजा शमसुद्दीन अदीनी, वो पूरा इलाका उससे पहचाना है, ये उस इलाके की शनाख्त। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम सब की बहुत दुआएं हैं फहीम खत्री साहब के साथ, हम सबका बहुत शुक्रिया है इनके लिए, और बहुत दुआएं अल्लाह ताला आपके जहन को मजीद ज़रखेज़ी और मजीद दूरबीनी और मजीद माजी बीनी अता फरमाए। हाँ, माजी से कनेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जहन में हमेशा ही रहा है कि हम एक बहुत बड़े दरख्शां माजी के बारे से और एक बहुत बड़े दरख्शां माजी के हम अमीन हैं। और तसव्वुफ जिस तरह इन्होंने गोल्डन एरा का जिक्र किया है, तो तसव्वुफ भी गोल्डन एरा में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अभी पिछले 300-400 सालों से जहाँ बाकी शोबों में इन्हतात आया है, वहाँ ये तसव्वुफ के मामलात में भी काफ़ी इन्हतात आया है। तो अल्लाह करेगा सिलसिले दीमिया के सब बहन भाई मिलकर ये अज़्म करेंगे, ये इरादा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह माजी में तसव्वुफ एक बड़ी इल्म की और तरबियत की एक बड़ा मकाम होता था, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इस सदी में और आइंदा सदियों में सिलसिले दीमिया के जरिए तसव्वुफ इंशाअल्लाह इस खित्ते में, इस रीजन में, बल्कि सारी दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम इंशाअल्लाह दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे काम करें कि अब्बा की रूह खुश हो जाए,
माशाल्लाह मेरे बेटे ने, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह मेरा ध्यान समझा है और उसको आगे बढ़ा है। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर अब्बा के इस विरसे को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएं। सलाम की खिदमत मुक़द्दस में हाजिर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
स्ट्रीट और ये अजीमिया पब्लिक रोड, ये बड़ी सड़क है और ये ईदगाह वाली छोटी सड़क है। तो इसके कॉर्नर को हमने हाईलाइट किया हुआ है थ्रू स्क्रीन्स। अब ये मेटल भी हो सकती हैं, वो जीआरसी की सीमेंटेड स्क्रीन भी हो सकती है, लेकिन इनका कलर टोनल वेरिएशन होगी। और यहाँ हमने लिखा है, क्योंकि मेजर फ्लो हम इसी रोड से लाना चाहते हैं, आगे जाकर के हमारा मेन गेट है, तो इधर जो है वो मैंने एक कैलीग्राफी की है मेटल में, दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह। और उसके पीछे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड वे में हमने यहाँ आइकॉनिक एक फीचर दिया हुआ है। और इसको आइकॉनिक फीचर रखने की जरूरत ये थी कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम मूव करके सड़क पर आए तो हमको एक फोकल पॉइंट नजर आए जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर ये यूनिवर्सिटी नुमा एक स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जो फोकल पॉइंट है वो यही नोड है, वो यही कॉर्नर है, जिसका एक नुक्ता उसके बिल्कुल राइट अलाइन करता है जो मजार का सेंटर है। अब हम अज़ीमिया पब्लिक लाइब्रेरी वाले सड़क से आगे जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल, हाँ, पब्लिक स्कूल वाली सड़क से हम जा रहे हैं। तो यहाँ ये फोर्टिफाइड वॉल्स आ रही हैं जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें टेक्सचर जो है वो वर्टिकल लाइंस में हो सकता है हम इसको हाथों से बनाएं, हो सकता है हम इसका कोई फर्मा बना करके लकड़ी के फर्मे से इसको प्लास्टर के अंदर ही ऐसे बनाएंगे, तो पिगमेंटेड वैल्यूज के साथ टेक्सचर डिफरेंट हो जाने से कैरेक्टर फर्क आ जाएगा। ऊपर जो है वो रगेड फिनिश होगी और मरकज सिलसिला अज़ीमिया का एक लोगो जो है मेटल में बना होगा और ये स्क्रीन जो है वो हमारे डिजाइन का हिस्सा होगी। अब ये मेन एंट्रेंस डोर आ गया अज़ीमिया पब्लिक रोड जो है स्कूल वाला। अब यहाँ से दिस इज आवर मेन एंट्रेंस डोर। वो जो मैंने डिस्कस किया था कि जी दरवाजे का सड़क से एक रिश्ता है, दरवाजे के थ्रू इस बिल्डिंग का सड़क से रिश्ता है दरवाजे के थ्रू, और दरवाजा खुलता है डेवड़ी में। तो इसके बिल्कुल पीछे जो है वो एक डेवड़ी है और उसके बाद हम जो है वो मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड में जा रहे हैं। और इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से या इन ट्रायंगुलर मोटिव्स के जरिए जो है वो हम यहाँ कुछ एक मैसेज क्रिएट करेंगे। अभी हमने इसको सिंबॉलिकल वे में दिखाया हुआ है, हम इसकी कोई मिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर एम्बेड किए जाएंगे। और ये हमारी लाइट सोर्सेस आ जाएंगे जो डाउन फायर होंगे सारी। और इस किस्म के जो फीचर्स हैं ये इस तरह ऐड करके हम वो इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि वो जो हमारा खूबसूरत माजी था उससे जो मैसेज हम यहाँ देना चाहते हैं वो इन पूरी चीजों का एक सही मुरक्कब बन के ही फिर हमें मिल पाएगा। इसलिए हमने यहाँ डबल हाइटेड वॉल ली हुई, आगे जाकर सिंगल हाइटेड है। अब यहाँ मेन एंट्रेंस तरफ आ गए, ये हमारी सेकेंडरी एंट्रेंस है, नहीं ये मेन एंट्रेंस है। अब हम डेवड़ी की तरफ जा रहे हैं, दिस इज डेवड़ी। देखिए ये टेक्सचर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा और ये वो लाइंस वाला टेक्सचर भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज मेटल स्क्रीन, वुडवर्क स्क्रीन। अब हम डेवड़ी में आ गए। अभी तक हम अब मेन डोर को देख रहे हैं जो बाहर की तरफ है अभी तक, और यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंट्रल कोर्टयार्ड है। अभी मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड आ गया था जिसमें यहाँ रिफ्लेक्शन पूल है, ये रिफ्लेक्शन पूल है, ये आस्थाना है और ये मौजूदा बिल्डिंग है जिसको हम जो है वो स्टाइलाइज्ड वे में इसी डिजाइन की थीम में ले आएंगे और इसको एक्सेंचुएट ऐसा कर लेंगे कि इन कॉलम्स की जैकेटिंग करके हम इन स्टेप्स को यहाँ इस स्पेस में ले आएंगे। अब ये जो फ्लोर है, इन फ्लोर के अंदर भी बहुत ही ये होगा स्टोन फ्लोर या स्टोन की तरह टाइल्स होंगी और उनके अंदर हम खास लाइन वर्क ऐसा करेंगे जो हल्का सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और जिससे पैटर्न के साथ कनेक्टिविटी भी जो है वो हमें फील हो रही होगी, लेकिन उसमें कोई स्ट्राइकिंग कलर्स नहीं होंगे ताकि ये सबड्यू रहे और ये बैकग्राउंड का मैसेज देते रहे। हमें उसको सेलिब्रेट नहीं करना, हमें सेलिब्रेट उस स्पेस को करना है। नाइट व्यू, ये जो आस्थाने का जो डिजाइन है यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वुडवर्क और मेटल वर्क के साथ इसको बनाएंगे। इस पूल के अंदर भी जो है वो एक्वा ग्रीन कलर की छोटी छोटी मोजाइक टाइल्स होंगी और इनके अंदर भी लाइट्स होंगी ताकि रात को ये एक और इम्पैक्ट हमें क्रिएट कर सके। और वो जो एग्जिस्टिंग हमारी रोड है और एग्जिस्टिंग हमारी एंट्रेंस है उसको हम एज ए सर्विस एंट्रेंस यूज कर रहे होंगे। फिर यहाँ हमने दिया है, यहाँ लेबोरेटरीज हैं, यहाँ कुछ लंगर खाने का है, यहाँ पर हमारे वेटिंग सेल्स हैं और यहाँ से एक डोर हमने दिया है जो बराबर में अगर हमें कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है तो हम यहाँ
स्कॉलर्स के लिए रेजिडेंसीज वगैरह बनाएंगे ताकि स्कॉलर्स जो बाहर से आए वो यहाँ रिसर्च कर सकने के लिए रुकें और अपनी एकोमोडेशन यहाँ के पास। अगेन अनदर व्यू। अब ये वो स्पेस है जो अभी यहाँ से दूसरी स्लाइड में और नजर आएगी कि यहाँ हम उसको एल शेप में लेकर के गए यहाँ से यहाँ। अब यहाँ हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स और उनके रूम्स और उनकी सारी लोकेशन हो रही होगी और नीचे जो है वो गेस्ट वाले एरियाज होंगे जिसमें सुवेनियर शॉप्स है, लाइब्रेरी है और वेटिंग एरियाज हैं, इस तरह की चीजें यहाँ हो जाएंगी और सिक्योरिटी रूम्स हैं। अनदर व्यू। अब ये आपका कवर्ड जो है एक लेक्चर रूम हो गया जो कि ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ओपन है और उसकी जो डेड वॉल होगी उस डेड वॉल में हमने वो पूरा कॉस्मिक ऑर्डर का एक ड्राइंग जो है वो प्रिंट की हुई है। अच्छा, इस तरह ये जो ऊपर के जो आर्केड है, क्योंकि ये आर्केड हमने ऐसा दिया है जो सेंटर ओरिएंटेड है, जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ होगा। इन आर्केड्स को हम सेंट्रल फोकस यानी कोर्टयार्ड फोकस बनाएंगे और उनके आगे आगे इस तरह की वुडवर्क या मेटल की स्क्रीन्स होंगी और उनके साथ जो है वो खास किस्म के ब्रैकेट्स पर इस किस्म के फ्लायर्स हैंग होंगे जो ओकेजनली चेंज होते रहेंगे, नए नए प्रिंट्स बनते जाएंगे ओकेजन्स के मुताबिक, महफिल के मुताबिक, वो यहाँ मैसेज आता चला जाएगा। और फिर इस हिस्से को दोबारा अप करके और फिर मज़ार शरीफ को जो है वो फर्दर हमें 1.5-2 फीट अप करके ताकि उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी हो और उसका स्केल जो है वो बाहर से रीड हो। इस किस्म के जो फीचर्स हैं जो कि फिक्स भी हो सकते हैं, रिमूवल भी हो सकते हैं, वो आपको नीचे शैडो कास्ट करेंगे जिससे अनदर डायमेंशन ऑफ डायनामिक्स जो है वो यहाँ हमें नजर आएंगे और ये सूरज के साथ साथ मूव करते रहेंगे तो आपको अलग अलग शेड नजर आएंगे एक ही फ्लोर। अर्थली टोन्स, वेजिटेशन, स्टेप्स, कोर्टयार्ड, लाइट्स, ओपननेस, सेंट्रल कोर्टयार्ड इफेक्ट, दुनिया से दूर एक अपना मेट्रो पजल। अब हम उस जो लेक्चर हॉल जैसा है हम इसके अंदर खड़े हैं, यहाँ से भी हमें वो जो मेन एरिया है वो इनविजिबल कहीं से भी नहीं, यहाँ से भी हमें दिख रहा है ताकि हम विजुअली फिजिकली कनेक्टेड और यहाँ अगर कोई एक्टिविटी हो रही होगी तो ये बहुत अच्छा सेटिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, वो वाले स्टेप्स, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा इन फॉर्मल में। अच्छा, हार्ड फ्लोर होने से थोड़ी मेंटेनेंस भी कम होगी और वेजिटेशन पूरी मिलेगी और हम जो है वो इसको लाइटिंग इफेक्ट के जरिए और रिफ्लेक्शन कूल के जरिए उसको कूल डाउन भी कर रहे होंगे, मेटल स्क्रीन या वुडवर्क स्क्रीन। यहाँ इस दीवार को हम जो है वो स्क्रीन बनाए और यहाँ कहीं से प्रोजेक्टर्स वगैरह लगा करके हम अपने प्रोग्राम्स कैरी ऑन करेंगे। जिसको हमने एक पूरा कॉस्मोलॉजिकल एक ऑर्डर यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है, सूरज और सैयारे और सारी चीजें। ये अभी सिंबॉलिकल वे में हमने यहाँ इस वॉल को पूरा किया है। नेचुरली इस पर एक भाईजान से एक बहुत सही राशि गुफ्तगू होगी और यहाँ पर एक मजेदार सा एक पूरा पिक्चर हम डिपिक्ट करेंगे, लेकिन इसका इल्यूजन यहाँ दे दिया है कि इट हैज टू बी हियर। आई थिंक अभी कुछ इस तरह है भी वहां पे, अभी वो सामने है। हाँ, सामने ये जैसे ही हम इस तरफ दरगाह की तरफ हम पहुंचते हैं और फिर हम रिवर्स देखें तो ये मौजूदा बिल्डिंग होगी, ये एल शेप में और ये एल शेप में यहाँ तक ये न्यू बिल्टअप होगा, ठीक है, जिसमें ऊपर ये आर्केड चल रहे हैं जैसे यहाँ चल रहे हैं, इन सब का फोकस इस तरफ है, उन सब का फोकस इस तरफ है, वही मुराकबे का कॉन्सेप्ट सेंटर की तरफ। और यहाँ हमारे क्लासरूम लगेंगे, यहाँ से लोग जो बाहर वाली सड़क से अंदर आएंगे वो यहाँ से रिवील करेंगे इसको। यानी हाइड एंड सीक वाला प्रिंसिपल है कि आप एकदम कुछ ना दिखाएं, जरा ट्रांजिशनल वे में लाएं विजिटर को, फिर जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है फिर दिखाएं। अब ये रात में दिन में इसके ये इफेक्ट्स हो रहे होंगे। और जैसे जैसे कोई ओकेजन होगा तो हम उसको डिफरेंट तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इधर का गेट का बता दीजिएगा कि वो एक गेट हमने। अच्छा हाँ, एक जैसे ये अजीमिया स्ट्रीट है ना, इस स्ट्रीट में पीछे सामने की तरफ ईदगाह है, तो ईदगाह से भी हमने रास्ता दिया है ताकि जिसको डायरेक्ट यहाँ बाजार आना हो तो वो यहाँ से भी आ सके और इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी बन सके। तो
इन अ वे देखा जाए तो 3 एंट्रेंसेस हैं। एक बड़ी सड़क से जो मेन एंट्रेंस है, जो थ्रू देवड़ी आएगी कोर्टयार्ड के अंदर, और एक डायरेक्ट यहाँ से, और दूसरी वो जो मौजूदा है उसको हम एज ए सर्विस एंट्री यूज करेंगे ताकि गाड़ी वहां तक आ सके। यहाँ बिल्कुल सिटिंग्स वगैरह दी हैं, और इधर वजू खाना वगैरह दिया था वो। जी जी, ये इसको हम एज ए वजू खाना यूज कर सकते हैं। और यहाँ इस तरफ हमने जो है इस तरफ जो है वो यहाँ हमने एक्सटेंशन की है ख़वातीन के लिए वजू खाना और लेबोरेटरीज हैं। इसी तरह ऊपर जो है वो जेंट्स के लिए इस तरफ भी है, और वो जो सर्विस एंट्रेंस जहाँ से हमारी आ रही है उस तरफ भी मौजूद है। माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की प्रेजेंटेशन हमने देखी, जिससे आगाज शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह ताला सिलसिले अज़ीमिया के तमाम अफराद का भरपूर ताउन हमें हासिल रहेगा, तो इसको हम मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। इस हवाले से एक स्कीम बनाई गई है कि आप लोग सब अपने अपने डोनेशन कलंदर शोक फाउंडेशन के नेशनल बैंक के अकाउंट में अरसाल करेंगे। तो मिनिमम एक ईंट जो कि 1000 रुपए की है, वो हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक वो कंट्रीब्यूट। एक यूनिट एक ईंट है। 1 ब्रेक 1000 और 1 यूनिट है। तो अगर किसी ने 10 ईंटें ली तो 10,000 की हो गई। इसी तरह सब लोगों का ताउन हासिल रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी पाए तकमील को पहुंचेगा। इसके पॉइंट थे, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ़हीम भाई ने और मेमन साहब ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन पेश की, और जिसको वकार भाई के विज़न को और हमारे सिलसिले अज़ीमिया के कवायद व ज़वाबित मुर्शद करीम के जो उन्होंने हमें कवायद व ज़वाबित दिए थे, उनकी रूह में एक ऐसी दरगाह के तौर पे इन्होंने पेश किया, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर नए अंदाज के साथ अप टू डेट स्टाइल में पेश किया गया। इंतहाई बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसमें इस दरगाह के हवाले से एक थीम को मद्देनज़र रखा गया। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी है, जिसमें दरगाह को इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया है कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए माजी की जो गोल्डन एरा है वो भी सामने आए, और आइंदा मुस्तकबिल में भी जो उसकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई खूबसूरत काविश थी। भाईजान के जहन में जो दरगाह के लिए फ़िल्म चल रही थी, आज उसका इतने खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया कि हम माजी, हाल और मुस्तकबिल के गिर्द घूमते रहे। अल्लाह ताला भाईजान को सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और वह हमारी इसी तरीके से रहनुमाई करते रहे। और मेरा ये यकीन है कि जब ये ग्राउंड पे खूबसूरत तरीके से आएगा तो ये यूनिक और एक यादगार तस्वर की जाएगी। यहाँ पे एक हिस्टोरिक इवेंट जो है वो में शरीक होने की सादत मुयस्सर आई हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे तस्वर से भी ज़्यादा एक बेहतरीन किस्म की कैफियत मुरतब हुई, और बहुत ही एक यूनिक किस्म की ये एक महफिल थी। और इसमें जो सबसे मुतासिर कुन बात है वो मोहतरम क़िबला भाईजान की जो एक अनथक कोशिश और मेहनत है,
وہ انتہائی ایک خوشی کا باعث بھی ہے اور کچھ حیران کن بھی ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں 8 ماہ کے 7 ماہ کے عرصے میں اتنا بڑا انیشیٹ لینا اور چیزوں کو سم اپ کر کے فائنل کرنا، اور وہ بھی حضور مرشد کریم کی درگاہ کے حوالے سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھائی جان کو مزید ہمت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بہن بھائیوں حضور مرشد کریم کے مزار اقدس کو بنانے میں مل جل کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک میں نے جتنے بھی مزارات دیکھے ہیں ماشاءاللہ بہت سے خوبصورت ہیں، لیکن یہ حضور ابا جی کا جو مزار مبارک ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بالکل منفرد اور بہت خوبصورت ہے۔ بھائی جان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اس پرسعید تقریب میں بلایا اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ تقریب رونمائی تھی درگاہ شریف کے حوالے سے۔ اٹس اے مارولس پروگرام، اور انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف بھائی جان محترم ڈاکٹر وقار یوسف صاحب، ان کا جو ویژن ہے اس کو لے کے چلنا ہے، امتزاج ہے اپنے اسلاف کا اور فیوچر کی جو بھی سائنس ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ایک ایسی، یہ نہ صرف یہ مقبرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہوگی، اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا اس سے جو ہے علم کی ایک جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ بابا جی کی درگاہ کے بارے میں دیکھ کر اور جو انہوں نے پریزنٹیشن دی اسے سن کر بہت اچھا لگا، اور ایسا لگا کہ جیسے ہمارے مرشد کریم کا ویژن جو ہے اسے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی جان۔ ہماری دعائیں بھائی جان آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے ویژن کو اور زیادہ وسعت دے، اور انشاءاللہ اس ویژن کی تکمیل میں ہم اپنی بساط کے مطابق جو بھی ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کا پروگرام ہماری جو توقعات تھیں اس سے 1000 گنا جو ہے نا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ اس میں بہت ساری کاوشیں نظر آئیں، خصوصاً بھائی جان کی، خالد بھائی کی، اور جو آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ آج مرکزی مراقبہ حال کے زیر اہتمام ہونے والی حضور ابا جی کی درگاہ کی پریزنٹیشن دیکھی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہے۔ جیسا کہ فہیم کھتری صاحب نے کہا کہ آرٹ جو ہے وہ ایک شاعری ہے، تو وہ دیکھ کے لگا کہ جیسے وہ شاعری جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں سے بہت خوبصورت شاعری دی گئی ہے۔ اصل جو اس کا صحرا جاتا ہے وہ بھائی جان کے سر پہ جاتا ہے، تو بلا شبہ بھائی جان کی جو فکر ہے، جیسے انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل میں صوفیانہ کلچر کو ایک جگہ پہ سم اپ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ارینج کیا گیا اور بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تھی۔ اس میں آرکیٹیکٹس نے اور محترم بھائی جان ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب نے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے 8 ماہ کی قلیل عرصے میں اس ڈیزائن کو مکمل کیا۔ یہ ڈیزائن ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے شایان شان بنایا گیا۔